Dear students and all stakeholder well-wisher, and today I am very happy. On 3rd of June, I was invited to interact with the students, those who are the topper of CBSE, ISC and Jharkhand board. And I was given an opportunity to address and tell something about that. I pay my sincere thanks to most dynamic DC of Hazaribagh, Mrs. Nancy Sahai, and for her motivational speech, and it was very interactive. So I pay my sincere thanks to Mr. Jain, also Ajay Jain, for creativity and excellence, and he invited me. So today I told to the students that is the 7 mantra of success. I have gone through, and this will be great helpful. I salute to my Guru Narayan Das Grover, and I joined 1986 as a teacher at Rajrappa and 1992 as a founder principal Hazaribagh. So I started my journey with zero, and now when I retired, so 31st of March, strength was approximately 6,000, and that was one of the best school in Eastern India. And some of the case study I must tell about that, like IIT examination, medical examinations, in CLAT examinations. Siddharth is here, and I will take the interview after that. And he got the first rank in OBC All India, first rank in Jharkhand, and All India general category 36 rank, and he got the Nalsar, that is the Bangalore, the best school of law for law in Asia. So I am very thankful. There are so many, Utkarsh, IAS probationer, Pooja Kumari, Ravi Ranjan, there are so many lists, and recently I took the interview of Swati. So my dear students will be very happy, and I must give credit to my DAV fraternity, DAV teachers, DAV management for considering me 37 years as a teacher and 31 years as a founder principal. So I am very thankful to DAV management, and especially our Honorable President and our Director JP Soor sir. So without taking much time, I will start 7 mantra of success. You might have seen, my dear students, this will be on the demand of the students from the Jharkhand board and some Zilla. So they have requested ki some bilingual Hindi or English both will be. So today I will tell the story or something like that. So rainbow, that is the, जैसे होता है ना इंद्रधनुष, 7 different colors, 7 days of the week, beautiful. So I will start with the 7 later. I addressed the same thing on the, on 3rd of June, and that was very inspiring, and I did not get the time to explain the things. Today I will explain about that. Why this 7 mantra? So A, B, C, D, E, F, G. I will start back counting from G. G means goal setting. Everybody, every successful you go through, maybe Utkarsh, maybe Siddharth, maybe Oprah Winfrey, maybe any persons, those who are cracking in IAS exams and IIT, or maybe like Rinku Singh of the IPL Calcutta team, and just throw his effort, the Calcutta 3 times winner, or maybe Jadeja in the last ball 10 run or something. Everywhere that is the goal setting and attitudes. So what is the, I am telling about that, the goal setting, that is the story of Elma. Elma was a very paralytic girl, she was born and she was paralytic, polio patient or something like that, and she had a dream to crack the, the best, just like a runner in athletics and something like that. उस स्टोरी में एक बहुत बड़ी बात थी कि एल्मा के सपने बहुत बड़े थे। उस सपनों से उसने वहाँ ओलंपिक में गोल्ड लेना। सब लोग हंसने लगे, अरे एल्मा क्या कर रही है, पैरालिटिक अटैक है, ये ऐसा हो गया। लेकिन उस बेटी के सपने थे। उसके माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, हारो मत। धीरे धीरे उसने जो है सोचना, डॉक्टर ने मना कर दिया, सारे दुनिया उसको मना करने लगे, समाज के लोग। लेकिन एल्मा was Elma. She started at the age of 11 years, she started going through. उसके जितने जो है बैंडेज थे उसको हटाई, and she started running.
ऐसा धीरे धीरे सी स्टार्टेड गोइंग थ्रू एंड व्हाट सी फाउंड कि कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, विल पावर. What happened? In 1960, Elma, first she became the first paralytic woman to cross the world and win the gold medal in Olympic. So that is the willpower, that is the goal setting. She had set the goal कि I have to be winner, I will declare the winner. मुझे जीतना ही है, और उसका कारण था इल्मा का स्टोरी बना. सो अब्दुल रहमान बॉम्बे में आया 30 साल पहले. उसने अब्दुल रहमान ने कहा कि इस सिटी को आई एम गोइंग टू रूल आफ्टर 30 years, आई विल सी अबाउट दैट. एंड वही अब्दुल रहमान बिकम द शाहरुख खान एंड द किंग ऑफ रोमांस एंड very, I mean, this Pathan movie, and that is the cross all the limits and earning or something like that. Like Jim Carrey, what? उसने सोचा, पर्स में एक चेक लिखा, he wrote a check to himself, $10 million 95 में I will earn the check, मैं कमाऊंगा. और उसने just he started thinking about that movie, and what happened in 1995, Dumb and Dumber. And that is the one movie cross all limit and he earned more than 10,000 billion. So what is the story? Everywhere that is the story. If you set the goal, you have the willpower to achieve the goal, and nobody can stop you. Only your attitudes, your goal setting and your clarity. I have gone through the book, one beautiful book and very marvelous book that is written by Brent Tracy, and that is the story of goal setting. What is, if you are driving a car and there is a fog, can you accelerate the speed? No. Why? Because there is no visibility, and without visibility you cannot excel. So in life, goal setting is important. If you have the goal, definitely you are going to be winner. So my dear students, you always and always take whatever you are going to do, like IIT or medical or entrance in civil services or anything in life, you must set the goal. Without setting the goal, definitely you are running just like, fog. You are driving a car in a fog. There is a धुंधला कुहासा है. Second point है the back focus. G first, then focus. If you set the goal and you are not focused, that means you are going to distract. Distraction is always possible only when you are not on the track. If you have the vision and clarity about that, कि you have set the goal and you have not to distract yourself. Why you are not going to distract? Because you are focused. And if you are focused like Arjun, महाभारत, सबने उनको दिया गया. महाभारत का स्टोरी इससे बड़ा क्या है? सबको बुलाया गया. दुर्योधन, बताओ ये यहाँ पर शूट करो, क्या दिखाई दे रहा है? उसने जब द्रोणाचार्य ने पूछा, उसने कहा कि आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहे, गुरुजी आप भी दिखाई दे रहा है. भीम को भी पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा सब कुछ दिखाई दे रहा है, गुरुजी आप भी हैं, आम का पेड़ है. सबको, युधिष्ठिर सबको. जब अर्जुन की बारी आई, बोलो अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? गुरुजी 1 मिनट शांत होकर बोला, गुरुजी आज मुझे आँख दिखाई दे रही है, वो चिड़िया या मछली जो भी है उसकी आँख. बोले कि मैं तो सामने खड़ा हूँ, आपके पेड़ है, सारे चीज़ सब लोग देख रहे हैं. तो बोले गुरुजी माफ़ करेंगे, मुझे आज आँख ही दिखाई दे रही है. सो इस तरह का फोकस्ड होना कि जहाँ मारना है वही दिखाई देना है. So my dear students, always think about that कि you have set the goal. But number of time I have gone through the case study of so many students, so many persons, but they are not focused, they are deviation and distraction is there. Maybe opposite sex, maybe mobile, maybe drugs, maybe peers group. So every will distract you. So clear goal and focused on your goal. Then E. So the third letter back counting. So emotional bonding. I am telling about that the one book written by Howard Gardner, The Frame of Mind, Multiple Intelligence, and one book, the masterpiece,
I am telling about that Emotional Intelligence by Daniel Goleman. What a book is telling. If you have the goal, if you have the ability to control your emotions and impulses, you can be a successful leader. If you don't know to control your emotion, impulses, you are not knowing self-awareness, you don't know an ability to face the challenges and adversity of life, you are not going to rule the world. If you want to become a leader, if you want to excel in your desired field, so that is the emotional bonding, emotions. How to, just control the emotion of ourselves, how you will know about ourselves, and then you will be better administrator, better persons to control the others also, and you understand the other part also. So my focus is that ki EQ, why EQ is ruling the world, why SQ is ruling the spiritual quotient. One book I have gone through, and that is the marvelous book, Ian Marshall and Dana Zohar. A great book, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. That is the parameter of self-awareness, flexibility to change, then an ability to face the challenges of life. And last, that is the 8th point, the last is how to go against all odds. Because we are traditional mindset, somebody suggested we are going on track. Sometimes you have to go against the convention also, then you are a leader. So my focus is that unless or until you are emotionally bonded, your family, your principal, your teachers, your all stakeholder, well-wisher, friends are expecting you are going to crack in this examination. Nobody can stop you. These are the emotional bonding, and emotional quotient will help you to achieve your target. Whatever you are thinking about that, you are going to achieve it. Then D, my favorite, desire, desire to achieve. एक स्टोरी मैं कहता हूँ, फ्लोरेंस चैडविक एक ऐसी स्विमर थी कि उसने ब्रिटिश चैनल आसानी से पार की, स्ट्रगल करके पार की, एंड शी बिकम द चैंपियन। उस फ्लोरेंस चैडविक का उदाहरण है कि उसने किया। कैटलीना चैनल उससे बड़ा था, वर्ल्ड वाइड था। उसने देखा कि कैटलीना चैनल उसको की सबसे पीछे आई। क्या उसने इरादों को छोड़ दिया? उसको तो जीतना था, उसका तो सपना था, उसका तो डिजायर था, उसका तो इंटेंस डिजायर था। क्या उसने छोड़ दिया? नहीं। 2 महीना पहले वो हार गई, एंड शी वाज डिफीटेड, सबसे लास्ट में आई। लेकिन बाद में फ्लोरेंस चैडविक ने उस चीज को पकड़ा। कोहासा में उसको गोल सेटिंग व क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं था। इंटेंस डिजायर, बर्निंग डिजायर उसको पैदा की कि जीतना ही है। हारने के बाद, इसलिए हम सबको कहते हैं हारना सीखो। फुटबॉल जब खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, तो हारते हारते तब जीवन की लड़ाई में कोटा का नहीं होगा कि 72 डेथ हो गया, कमिट सुसाइड। 4 लड़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लें। नहीं करना है। फुटबॉल वाले, स्पोर्ट्स वाले से सीखो। यू मस्ट लर्न अबाउट दैट। फ्लोरेंस चैडविक से सीखो, धोनी से सीखो। कितने हार के बाद वो काम रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट में बाउंस बैक करते हैं। सो हार में ही जीत है। फ्लोरेंस चैडविक ने उस हार को लेसन लिया, बट ट्राई टू लर्न। इट इज नॉट द ब्लंडर टू be defeated, it is blunder not learning from the mistakes, that is our blunder. That is not the attitude. A good persons, those who are having the positive attitude, always be and thinking about the winner's attitudes. So हार जरूरी है। हार थॉमस अल्वा एडिसन कितने बार हारा? 10,000 बार। And he invented the bulb, electric bulb after that. क्या वो छोड़ दिया? अब्राहम लिंकन कितने बार हारते हारते कभी छोड़ दिए? फ्लोरेंस चैडविक ने वही दिखाया, इंटेंस डिजायर, बर्निंग डिजायर, उसके अंदर का हंगर, और उसने गोल पोस्ट बनाया। क्लियर 2 months तक ही प्रैक्टिसेस, और वो पूरा प्रैक्टिस करते रही फ्लोरेंस चैडविक। कैटलीना चैनल को इतिहास बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आप जाए। जैसे एल्मा का स्टोरी मैंने कहा कि 1960 में फर्स्ट पैरल मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी, उसी तरह से फ्लोरेंस चैडविक का कई सालों तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। ब्रिटिश चैनल, कैटलीना चैनल, इनके अंदर हारने के बाद वो बाउंस बैक करते हैं।
सो डिज़ायर बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर जिम कैरी में भी था, डिज़ायर ओफ्रा विनफ्रे, शी वॉज रिजेक्टेड अ नंबर ऑफ टाइम, बट शी हैड ए ड्रीम टू बिकम द एंकर ऑफ अमेरिकन टीवी and took the interview of the world class personality president of America and she was very successful. ओफ्रा विनफ्रे थी, ऐसे कई जिम कैरी थे, ऐसे कई उदाहरण है जिनके अंदर न हारने की जील है। तो डिज़ायर पहले होना चाहिए। अनलेस और अनटिल यू हैव द बर्निंग डिज़ायर, डिज़ायर से नहीं होगा। एक कहानी और, सुकरात ने एक यूथ आया उनके पास, उसने बड़ा हंसते हुए पूछा, गुरुजी आप तो बहुत कुछ जानते हैं, सुकरात बहुत महान है। उसने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। बोले ओके, तो सर बता दीजिए आप। तो बोले चलो कल सुबह आना। बोला आप तो इतना जानकार आदमी है, इतने विद्वान आदमी हैं, आप इतना तो कुछ बता सकते, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? वेरी सिंपल। बोले कोई बात नहीं, कल सुबह आओ। सुबह वो आया, उस यूथ को लेके आगे गए, एक नदी के पानी में धीरे धीरे अंदर घुसाए और उसके गर्दन को पकड़ के नीचे पानी में कर दिया। उसने छटपटाने लगा, पूरा छटपटाते रहा, उसको और दबाए रखे, नहीं आने दिए। जब पीला होने लगा, जब छटपटा के पीला जब चढ़ा, तब उसको ऊपर उठाए। धीरे से वो अपने आप को सांस लेना शुरू किया किसी तरह से। उसके बाद से पूछे कि जब तुम पानी में थे तो क्या महसूस कर रहे थे? व्हाट यू आर थिंकिंग? जब पानी के अंदर में छटपटा रहे थे इस तरह से जान, तो बोले एयर, हवा, हमको किसी तरह से सांस लेने के लिए हवा चाहिए। तो जिस तरह से जो तुम सोच रहे थे कि हवा कितना ज़रूरी है जीवन में, इन लाइफ, अनलेस और अनटिल यू हैव द इंटेंस डिज़ायर। डिज़ायर वो नहीं जो रात के सुला दे, डिज़ायर वो जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि जो सोने नहीं दे। सिद्धार्थ के पास वो डिज़ायर था, सक्सेसफुल हुआ। उत्कर्ष के पास था। बड़े बड़े पर्सनालिटी जो बनते हैं वो उनका डिज़ायर ही बनाता है, इंटेंस डिज़ायर। अदरवाइज हजारीबाग का लड़का क्लैट में टॉप करना, झारखंड में इतने वो हैं, ये डिज़ायर बताता है। तो उसने कहा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये महसूस करो, वही तुम्हारा इंटेंस डिज़ायर जो सक्सेस के लिए जो ईयर काम किया, वही सक्सेस के बारे में जब सोचोगे तो इंटेंस डिज़ायर की तरफ। तो कि उनका मेथड थोड़ा क्रूएल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, जो न भूलने वाला इम्पैक्ट था कि क्या इंटेंस डिज़ायर होना चाहिए। जिस तरह से हवा के लिए हमको हो रहा था कि मिले जल्दी, उसी तरह से सक्सेस का वही है। इंटेंशन अच्छा था, प्रयोग क्रूएल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। अनलेस और अनटिल यू हैव द बर्निंग डिज़ायर, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव। थिंक एंड ग्रो रिच या यू कैन इन, नेपोलियन हिल ने रिसर्च के बाद लिखा है। उसने कहा कि डिज़ायर से बढ़ के कोई चैप्टर ही हमको नहीं मिला। डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर, दुनिया में जो भी है अचीव किए हैं वो उसी के चलते मिला। नेक्स्ट उसके नीचे सी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी ऑफ थॉट। जाना कहाँ है हमको? हमको आईएएस में जाना है तो जिगजैग प्लान में मत जाए, क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर टारगेट, सो यू शुड बी वेरी क्लियर। जाना कहाँ है? जैसे एक कहावत होती है, धूल थी चेहरे पर आईना, जीवन भर यही गलती करते रहे, धूप थी चेहरे पर आईना साफ करते रहते हैं। हमको जाना है आईएएस में, हम इधर बात कर रहे हैं, हम दूसरे लाइन में बात कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप जो भी लाइन चुनते हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। जाना कहाँ है? तभी गोल सेटिंग, तुम फोकस होगे, तुम्हारे अंदर इमोशनल बॉन्डिंग होगा, तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा होगा। तो जाना कहाँ है? सी फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट, सी फॉर कन्विक्शन। प्लेइंग टू विन एंड प्लेइंग नॉट टू लूज, व्हाट इज द डिफरेंस? प्लेइंग टू विन मीन्स कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, यू आर गोइंग टू अचीव द टारगेट। और एक है प्लेइंग नॉट टू लूज, कि किसी तरह हार नहीं जाए। तो दोनों में कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दूसरे में कमी है। सो ऑलवेज प्लेइंग टू विन, हमको जीतने के लिए एक पॉइंट मिला और तुमको अगर रिवॉल्वर दिया गया कि उस पॉइंट पर मारना है, आई मस्ट मेक श्योर आई विल शूट इट। दूसरा लड़का कहता आई विल डू इट, आई विल क्रैक द आई,
I will crack the CLAT, I will crack the IIT, I will crack the civil services toughest examinations. ये होना चाहिए, ये नहीं तैयारी कर रहा हूँ, उसके मतलब विशफुल थिंकिंग है, क्लैरिटी नहीं है, वो तैयारी कर रहे हैं IAS का, वो 10 साल से तैयारी ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, इससे ब्यूटीफुल वर्ड मैंने डिक्शनरी में शायद नहीं देखा है। न हारने की झील, परसिवियरेंस का मतलब ही होता है कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर रहो, बी कंटिन्यूअस एफर्ट, पुट योर कंटिन्यूअस एफर्ट टू अचीव द टारगेट। विवेकानंद इतने बड़े ग्रेट थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज अचीव्ड। उन्होंने इतने बड़े जो है, जो कंसंट्रेशन, सी से कंसंट्रेशन भी, एक तपस्या कर रहे थे, पेड़ के आगे बैठे हुए थे, एक बारात उधर से ढोल पीटते हुए जो है बैंड बाजा के साथ निकल गई। तो आगे वाले ने पूछा कि सर आपने कुछ देखा, बारात एक गई है। कौन गया है? बारात किधर से? तो मैंने तो देखा नहीं। व्हाट ए कंसंट्रेशन, वी मस्ट लर्न अबाउट दैट। Arise awake and stop not till your goal is. इसको कहते हैं C for concentration also. Most of the students are deviating, distracting. Why? They are not concentrating. They are not focused. They are not having the conviction to achieve the target. केवल wishful thinking से सोच लिए कि IAS कर लेंगे, CLAT कर लेंगे, या IIT कर लेंगे, या मेडिकल कर लेंगे, या कोई भी चीज़ कर लेंगे, नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर भी बनना है तो उसके लिए भी क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, विजन चाहिए। यू मस्ट हैव ए विजन कि जाना कहाँ है। तो कंसिस्टेंसी, सी फॉर कन्विक्शन, सी फॉर कंसंट्रेशन, परसिवियरेंस, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये अगर है तो सफलता का नमूना है, कोई तुमको पीछे नहीं छोड़ सकता है। नाउ कम टू सी से बी, believe in yourself. Believe, you must have faith in yourself, you must believe yourself, you can transform, you can achieve the target. You go through the successful personality as the first 10 toppers, that is the one story in civil services exam, they are believing themselves कि I will do it. जो IAS की टॉपर है इस बार, वो इस तक वो उसका जो है 2 बार नहीं हुआ। अभी शताब्दी मजूमदार 2 बार फेल की। अभी IAS प्रोफेशनल हजारीबाग में जस्ट स्टडे, माई स्टूडेंट दीपक और हम बैठे थे, 1 घंटा उसका टिप्स दे रही थी। आई वॉज देयर एंड सी टोल्ड कि 2 बार फेल कर गए, लेकिन न हारने की जिल थी कि मैं करके रहूँगी। तो IAS के टॉप 10 का केवल उदाहरण बता दें, उनके अंदर एक क्षमता थी कि हम नहीं हारेंगे, हम जीत के रहेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बिलीव करो। इससे ब्यूटीफुल वर्ड कुछ नहीं है। इफ यू वांट टू सक्सेस, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल इन लाइफ, और इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर डिजायर फील्ड, वट एवर यू आर थिंकिंग, मे बी एनी प्रोफेशनल लाइफ और कैट एंट्रेंस भी हो, दैट इज द टफेस्ट एग्जाम्स। सो IAS का एग्जाम्सन है, दैट इज द टफेस्ट। CLAT का एग्जाम्सन, दैट इज द टफेस्ट। ये सारे टफेस्ट है, लेकिन माइंड एकदम सॉफ्ट रहता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है, बिलीव करते हैं कि आई विल अचीव द टारगेट। आज सिद्धार्थ से हम जब पूछते थे कि तुम्हारा एम क्या है, एक जगह हो गया था, he wanted to get himself admitted, but he had desire, he had conviction, he had a faith कि हम जो है सर बेंगलोर का लॉ कॉलेज ही पढ़ेंगे। he believed क्या मीन फॉर दैट एंड आई विल क्रैक सर। आप निश्चिंत रहिए, आप लोग के ब्लेसिंग से, एंड दैट वाज द वर्ड। सो आफ्टर दैट आई विल टूक द इंटरव्यू। सो यू थिंक अबाउट दैट कि बिलीविंग सिस्टम, यू बिलीव योर सेल्फ, अपने एबिलिटी को, अपने पावर को, पोटेंशियल को जो बिलीव करता है वो सक्सेसफुल होता है, आगे उसको यूटिलाइज करता है। और जो बिलीव नहीं करता है, जो अपने आप में ही भरोसा नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लान फॉर योर फ्यूचर कंपटीशन और एनी कंपटीशंस इन लाइफ। इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। टफ तो बनना पड़ेगा, लेकिन जितनी असफलताएं आती है वो सफलता का नींव वही तैयार करती है। जितनी फेल्यूर आए घबराओ मत। थॉमस अल्वा एडिसन से बड़ा तो अनसक्सेसफुल कोई नहीं होगा, लेकिन आज दुनिया उनको याद करती है। कई नोबेल लॉरेट जेम्स कैलन उनका स्टोरी पढ़ रहे थे
इतनी हारी, इतना रिसर्च पेपर जानते थे और फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ऐसे स्टोरी में पढ़ता हूँ तो बड़ा इंस्पायरिंग है, ना हारने की चीज। सो क्या था? बिलीफ सिस्टम था। दे बिलीव देमसेल्व्स कि आई विल बी सक्सेसफुल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और दिस नोबेल प्राइज का विनर भी बनूंगा। तो आप नेल्सन मंडेला, व्हाट इज द स्टोरी? 27 ईयर्स जेल में इम्प्रिजन किया गया, कितना टॉर्चर किया गया। बाद में जब निकलते हैं तो पूछता है पत्रकार कि अब क्या मकसद है आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में? यू आर, बोले नहीं, साउथ अफ्रीका को बनाना है, साउथ अफ्रीका को बनाना है। हम दुश्मनी करने के लिए नहीं निकले हैं, हम भूल गए, हमको सबका सहयोग चाहिए। व्हाट ए पर्सनालिटी, व्हाट इज द पॉजिटिविटी, इससे बड़ा पॉजिटिव नहीं। विक्टर फ्रैंकलिन, यहूदियों ने उनको मार ही दिया था, वो टॉर्चर करते थे, उसने अपना एटीट्यूड नहीं बदला, पॉजिटिविटी, कि मुंह कितना भी टॉर्चर कर लोगे, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल नॉट फॉरगेट, आई विल नॉट change my attitude and definitely I will be successful. विक्टर फ्रैंकलिन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, ट्रेन से फेंका, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। ट्रेन से फेंका, यू बास्टर्ड इंडियन, ब्लैक इंडियन, हाउ टू ऑक्युपाई द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। गांधी ने उस चीज को एक लेसन लिया कि अंग्रेजों को एक नॉन कॉपरेशन चाहिए, चंपारण मूवमेंट चाहिए, और उससे स्टोरी बना कि धीरे धीरे मैं तुमको फेंकूंगा। ये इम्पल्सिव होकर तुरंत कुछ करते तो उसका एक जनरल लीडर करता, एक्सेप्शनल लीडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर, वो थोड़ा सोचते हैं, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। और उसके बाद गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इतनी बड़ी आंदोलन हुई कि अंग्रेजों को एहसास करा दिए कि हम ब्लैक इंडियन हो। साउथ अफ्रीका में वही काम करके आए थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट A, action plan. If you have the, just like I said, the goal, you are focused also, right? Emotionally bonded also. You have the desire, intense desire also. You are committed also to crack your desired field or any examinations. You are believing yourself. This won't be possible. Listen carefully. This won't be possible unless or until you have the action plan. Action plan and positive attitude. Action plan, you prepare your task. हर दिन का टास्क बनाओ, एक दिन में क्या किए एसेस करो, क्या छूट गया, दूसरे दिन, वीकली, मंथली, then you are going to evaluate yourself, and this मे बी रोब्रिक्स कुछ भी हो एवोल्यूशन का, लेकिन सेल्फ असेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Assess about that. I have gone through the successful personality, more than 200 novels, and that is the Harvard University Review. Almost I have completed. अभी डेरन हार्डी का किताब पढ़े हैं, कंपाउंड इफेक्ट, a great book, and that is the book I must say about that कि this is the story of something, and Harvard University का book review. This is the real story of case study of successful people, and I am thrilled to go through the, with 50% I have completed Harvard University. They have gone through the case study. These are not the fictional novel. How this company failed and how this company is successful. That is the attitude of their leader. So everywhere the action plan was there. Nokia, why Nokia failed? Why Enron failed? Why Kodak failed? Why the Xerox fails? There are so many famous Fortune magazine 200 company were ruling the world, and after 2 or 3 years, 10 years, they failed. Why? Because the attitude of leadership, 21st century leadership is very empathetic, listening skill. So try to understand, like a principal, like a teacher. I'm telling about that, unless or until you listen and try to understand, seek first to understand, then to be understood, like Stephen R. Covey. पहले बच्चों को समझिए, तब समझाइए. I'm famous line I'm always telling about that. I'm very fond of strawberry, but whenever I'm going for the fishing, so I used to give the worms and grasshopper, because strawberry is my liking, but the fishes like worms and grasshopper. So we have to, a leader must identify. लीडर को ये ध्यान रखना है कि हम क्लास में जाते हैं टीचर के रूप में, प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो,
बच्चे क्या चाहते हैं, हमारी इम्प्लाई क्या चाहते हैं, कैसे काम कर ले सके। इसलिए तो कहें कि उनके इमोशन को समझना, उनको कैसे काम करवाना है, ये ज़्यादा है। हाउ टू बी टॉट, दैट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट टू बी टॉट, दैट इज द जनरल थिंग। सो पेडागोजिकल टीचर मस्ट बी, प्रिंसिपल मस्ट बी पेडागोजिकल लीडर। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग नहीं जानता है तो क्लास में बच्चे तो कंसंट्रेशन में कहाँ से आएंगे। सो यू हैव टू क्रिएट द स्टोरी। सो एक्शन प्लान विथ एटीट्यूड। आप जानते हैं कि ए पर्सन वाज सेलिंग, एक आदमी सेल्समैन बैलून बेच रहा था। ही वाज सेलिंग ए बैलून, डिफरेंट कलर बैलून और समथिंग लाइक दैट। सो आफ्टर दैट वन चाइल्ड कम एंड नोटेड, अंकल जी वेदर दिस ब्लैक बैलून विल गो टू हायर। ताज्जुब किया एक छोटा, क्या अंकल जी ये काला बैलून भी ऊपर जाएगा? उसने कहा, बेटे इट इज नॉट द कलर ऑफ द बैलून, what is inside the balloon, that is the matter. And helium gas उसके अंदर भरा है जो उसको उड़ाता है। हीलियम को किसी ने नहीं देखा है, no one has seen। लेकिन कभी देखे हो आइसबर्ग में? देखे 90% वो दिखाई नहीं देता, आइसबर्ग नीचे रहता है। सो क्या है वो क्या खूबसूरत है जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिव्यू करके दिया। वर्ल्ड फ्रेम ऑफ माइंड में भी लिखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसीव किया कि सफलता का राज आपका 80% सफलता आपके एकेडमिक मार्क्स और इससे नहीं आने वाला है, स्कूल की डिग्री से नहीं आएगा, कॉलेज की डिग्री से नहीं आएगा। इट इज द एटीट्यूड, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड उसमें मेन है। अगर आपके अंदर इरादा ही नहीं है, जितने सफल हुए उनके अंदर इरादा था। तो एटीट्यूड जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिव्यू करके केस स्टडी में इसमें दिया है। सो एनरॉन और नोकिया का फेल करने के बाद है कि दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग द चेंज होता है। 21st सेंचुरी का टीचर 20 साल पहले का टीचर कहे कि हम उसी में पढ़ा लेंगे, हम बहुत एक्सपीरियंस है, आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस। आई रिमेंबर माई एंडी ग्रोवर, केमिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर थे और कॉलेज में थे। उन्होंने कहा कि बेस्ट प्रोफेसर और कॉलेज में थे, उन्होंने कहा कि अशोक हमेशा नया चीज़ सीखते रहना, न्यू थिंग्स सीखते रहना, नया चीज़। वो एंडी ग्रोवर उस समय कहते ही इज़ द फाउंडर ऑफ 200 मोर देन 200 स्कूल्स। ही इंस्पायर्ड मी। उनके स्टूडेंट इंद्र कुमार गुजराल, प्राइम मिनिस्टर बलराम जाखड़, अभी गुजरात के गवर्नर, हिमाचल के गवर्नर, उनके स्टूडेंट्स थे। ही वॉज माई मेंटर। आज मैं जो भी हूँ एवरेज से ऊपर था। मुझे परफॉर्मर अगर डीएवी को नंबर 1 बनाए अगर ईस्टर्न इंडिया में, झारखंड, बिहार में, सो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू माई मेंटर, गुरु। जो मेरे घर में सबसे पहले कोई आता है तो उन्हीं को देखता, मैं भी नमन करता हूँ। तो ग्रोवर साहब के अंदर एटीट्यूड मैंने गजब का देखा। मैं 92 में स्ट्रगल कर रहा था और उन्होंने कहा कि देखो आज 0 से शुरू कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा क्लियर विजन है। तुम जब रजरप्पा में टीचर थे, यू आर द बेस्ट टीचर, और आज यहाँ एक बेस्ट प्रिंसिपल बनना है। तुम्हारे अंदर का चीज़ और तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आना चाहिए। सो 24 जून हम टाउन हॉल में एक प्रोग्राम करने, आई पे माई सिंसियर थैंक्स टू ऑनरेबल डीसी मैडम। उन्होंने मुझे हॉल दिया है। चीफ गेस्ट, सी विल बी द चीफ गेस्ट। आज वक्ता होंगे सीबीएसई के टॉपर, आईसीएसई के टॉपर और जितने प्रोफेशनल में टॉपर हैं, आईआईटी, आईएएस में, सबको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। 24 जून को होगा 11 बजे। हम अलग से भेजेंगे क्योंकि उस मेंटर में उसका नाम है एंडी ग्रोवर सुपर परफॉर्मर अवार्ड। किसी भी फील्ड में उस महात्मा को जो 200 से ऊपर, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो अबाउट दैट, ही डिड नॉट चार्ज ए सिंगल पेनी। आज दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी को किसी ने नहीं देखा, हंसराज को, ग्रोवर साहब को मैंने साक्षात इन तीनों के गुण उनके अंदर देखा। ही वाज सच। सो व्हाट एवर आई एम, टाउन हॉल में भी पूछा, जहाँ भी मैं जाता हूँ कि मैं अपने डेडिकेट करता हूँ मेरे जो भी कंट्रीब्यूशन है, और मैं अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्रेडिट देता हूँ। फिर आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। फिर मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊँगा जो बेस्ट बुक्स हैं जिसमें हम बच्चों को चेंज कर सकें। कई गवर्नमेंट स्कूल्स के डिमांड आए जो कि डीसी मैडम का हम थैंकफुल हैं। हिमानी पांडे मैडम ने हमको बैकवर्ड गर्ल्स स्कूल दिया था, उसको मैंने 31st से 32nd रैंक था तो फर्स्ट पोजीशन वेलफेयर का आया। तो मैं
एक राष्ट्रपति अवार्डेड आदमी समाज के लिए, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को कॉम्पिटेंट बनाना है, क्योंकि वहाँ पर हैव्स नॉट के बच्चे पढ़ते हैं। हैव्स नॉट के बच्चे पढ़ते हैं। एक गरीब घर का बच्चा अगर आईएएस बनेगा, तो मेरा तीसरा इनिंग सबसे बड़ा फोकस उन्हीं लोगों के लिए है। और डीसी मैडम हमको उसी तरह से काउंसलिंग के लिए दे रही गवर्नमेंट स्कूल। सो आई एम वेरी थैंकफुल to her and district administration. I am sure about that with the cooperation of all stakeholders, I will achieve the target. Thank you very much.